Hello IIT aspirants, how are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinity Vision and to the comprehensive course on quadratic equation. As you know, in the last class we began this course on quadratic equation. In that we already talked about the overview of the course and the first lecture. We have finished the first lecture. As you already know that this course covers everything you need to know about quadratic equation for your IIT JEE journey. So be it IIT JEE Mains, be it IIT JEE Advanced or any other engineering examination, everything which they are going to test you on quadratic equation is being covered in this course. Apart from that, whatever understanding and knowledge you need regarding quadratic equation for your smooth coverage of rest of the mathematics courses, where you will be seeing a lot of quadratic equation, and even in the courses on physics you will see lots of quadratic equations. So this course is something which will help you master this content, which will help you not only cover this content for IIT JEE Mains and Advanced, but also it will help you understand the rest part of the syllabus of IIT JEE, because you know that quadratic equation is extensively available. Is You see the presence of quadratic equation in almost every corner of mathematics and physics. So as you know that this course we have divided in 5 sections, and we have already taught what we are going to cover in those 5 sections. If you have missed lecture 1, please go back to the lecture 1 first and finish that, and then come to this lecture. So let me take the quick recap that what we did. As you know, in section A we finished introduction of quadratic equation, then we did completing the square method, then we talked about discriminant of quadratic equation, then we did sum, product and difference of roots of quadratic equation, then we learned how to represent quadratic equation using factor theorem, then we also learned how to represent quadratic equation using sum and product of its root, and then we did some problem solving. So now, since the first lecture was mostly all the topics were belonging to what you have already done in class 10, so it was not a very challenging thing. Section 2 also, lecture 2 also doesn't have those lot of new concepts, because after lecture 2 the content would be little new to you, where you will have to have a fresh eye and a right understanding. So let's see what we have to cover today. We will be doing nature of fruits. I'm sure you have already know what do you mean by nature of fruits, so we'll just go into greater detail and do lots of problem solving. After that, we'll be talking about quadratic inequality, since you have already covered inequality in basic maths. So quadratic inequality you will be something you will be very comfortable and you will be able to handle that. Then we'll be talking about roots under particular conditions. So here we'll be talking about different variations of conditions given in for the equation ax square plus bx plus c, where whose roots are real. So we'll see how we can interpret those in conditions, and then we'll be doing a lot of problem solving related to that as well. And then the next lecture, lecture 3, will begin with quadratic identity. So you know, if you want to have a full course overview, you can go to the first lecture. You will see all the 5 sections there with a detailed discussion that what we are going to cover in the course. So without wasting much time, let's begin the lecture. As you know, nature of fruits, when you if you remember the last time we discussed, we found the roots of quadratic equation. You have also done this in class 10. So if you have a quadratic equation like ax square plus bx plus c equals 0, now this is the quadratic equation, and if where a b c are the a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is a constant, and all are real number, then for the formula for roots becomes minus b plus root b square minus 4ac by 2a, and the other root becomes minus b minus under root b square minus 4ac by 2a, right? These were the two roots. The thing was the under root b square minus 4ac, जिसे हम d भी कहते हैं, that is discriminant. इसके 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं. क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं? या ये ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या
लेस देन जीरो होगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, आपको पता है, एंड अल्फा बीटा आर रियल नंबर, सो व्हाट यू से रूट्स आर real and distinct. What you say? Roots are real and distinct. When you have d is equal to 0, it means alpha equals beta, and they are alpha beta both are real numbers, and alpha is equal to beta is equal to minus b by 2a. So this is what we learned in class 10th also, in last class also. Now when we talk about d less than 0, so what you see alpha is equal to minus b plus root b square minus 4ac by 2a, and beta is minus b minus under root b square minus 4ac by 2a. As you know, you cannot find the square root of a negative number. तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट आपको बस मैं इतना सा थोड़ा सा एक नॉलेज दे देता हूँ। लेट से अगर आपको कोई पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो यू नो दिस इज 2, बट इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4, व्हाट यू आर गोइंग टू से? यू आर गोइंग टू से अंडर रूट -1 इनटू अंडर रूट 4, which becomes under root -1 as iota. So you represent under root -1 as iota. So similarly, what you can do is minus b by 2a plus iota under root 4ac minus b square upon 2a. Because if b square minus 4ac is negative, then definitely 4ac minus b square would be positive. And what you can tell about beta? Beta would be minus b by 2a minus iota 4ac minus b square by 2a. So what you see about alpha and beta? You see it has minus b by 2a as same, and then you see this thing, this is called imaginary part. So whenever you see a complex number is always written in this form: z is equal to p plus iota q. अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो मैं बता देता हूं। P आपका रियल पार्ट कहलाता है और Q आपका इमेजिनरी पार्ट कहता है, और प्लस I के साथ जो है वो आपका एज इट इज रहता है, क्योंकि प्लस प्लस होता है और आयोटा को अंडर रूट -1 की तरह लिखते हैं। तो अगर आपके पास अल्फा माइनस बी बाई 2a प्लस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वायर है, और बीटा माइनस बी बाई 2a माइनस आयोटा, तो इसमें आप कह सकते हो, लेट मी जस्ट, तो आप ये कह सकते हो, लेट मी इरेज दिस, तो आप कह सकते हो अल्फा इज माइनस बी बाई 2a प्लस आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, और बीटा को आप लिख सकते हो माइनस बी बाई 2a प्लस आयोटा माइनस 4ac minus b square by 2a. What you can see is this is the real part of alpha and this is the real part of beta. This is the imaginary part of alpha and this is the imaginary part of beta. So what do you see? You see that the real part of both is same, but imaginary part is additive inverse of each other, which means one is with a plus sign and another with is a minus sign, but equal in magnitude. So what you can see that if you add alpha plus beta, you will see that this gets cancelled with this. This gets cancelled with this. You are just left with minus b by a. And if you multiply alpha into beta, even when you multiply alpha into beta, see what will happen. Yes, as you know, this is plus कचड़ा प्लस कूड़ा इंटू कचड़ा माइनस कूड़ा, और आयोटा इंटू आयोटा वुड बिकम आयोटा स्क्वायर. आपको पता है आयोटा इज अंडर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट -1 का स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी -1. तो अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा माइनस बी बाई 2a कचड़ा का होल स्क्वायर, क्योंकि दिस इज कचड़ा प्लस कूड़ा एंड दिस इज कचड़ा
minus kuda. So kachra plus kuda into kachra minus kuda becomes kachra square minus kuda square. So you can say this minus beta by 2a ka whole square minus iota root 4ac minus b square by 2a का whole square. अब ये क्या बन जाएगा, देखिए b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है -1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, इसका टोपी उड़ जाएगा, ये बन जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. अब देखिए क्या बचा, अब देख सकते हैं बीटा स्क्वायर कैंसिल, यू विल लेफ्ट विथ 4ac बाई 4a स्क्वायर विच इज c बाई a. तो आप देख सकते हैं अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तो अल्फा प्लस बीटा अभी भी क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए. तो आप देख सकते हो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होने के बाद भी सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज टर्निंग आउट टू बी अ रियल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो टर्निंग आउट टू बी अ रियल नंबर. सो विल बी टॉकिंग अबाउट इट. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो आप बोलोगे 2 इक्वल रियल रूट्स. और अगर आपसे कोई पूछता है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एबीसी तीनों रियल नंबर है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. किस फॉर्म में, तो आप बोलोगे p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में. p प्लस आयोटा क्यू, तो एक रूट होगा p प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा रूट क्या होगा p माइनस आयोटा क्यू. p आपका रियल पार्ट है और q आपका इमेजिनरी पार्ट है. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमेशा पेयर में, जैसा कि अगर आप याद हो आपने ये पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर में, इरैशनल नंबर में p प्लस रूट क्यू, इसका कॉन्जुगेट क्या पढ़ा था आपने p माइनस रूट क्यू, याद है. p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू को ऐड करने के बाद, ये दोनों इरैशनल नंबर को ऐड करने के बाद आपका रैशनल नंबर आता था, और इन दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी आपका प्रोडक्ट रैशनल आता था. तो हमने कहा कि ये दोनों इरैशनल नंबर्स कॉन्जुगेट है, अगर आपको क्लास 9 याद हो तो. उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी p प्लस आयोटा q अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट होता है p माइनस आयोटा q, जिसमें p और q रियल नंबर्स होते हैं. p इमेजिनरी पार्ट होता है, p रियल पार्ट होता है और q इमेजिनरी पार्ट होता है. अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल आएगा. तो इस तरीके के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कॉन्जुगेट कहते हैं. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे. बस आप इतना समझ लो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जिसमें a b c रियल नंबर्स हैं, तो अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट जो होगा उसका कॉन्जुगेट होगा. अगर एक रूट p प्लस आयोटा q है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा q होगा. राइट, आई एम श्योर अब आपको समझ में आ रहा होगा. नेचर ऑफ फ्रूट्स व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर. आपको पता है अल्फा आ गया है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा आ गया है माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a. अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, सो लेट्स कॉल d इज इक्वल टू k स्क्वायर. तो आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी इंटू k स्क्वायर अपॉन 2a, और बीटा को आप लिख सकते हो माइनस बी माइनस अंडर रूट k स्क्वायर बाई 2a. अब देखो अल्फा क्या आ रहा है माइनस बी प्लस के बाई 2a, और बीटा क्या आ रहा है माइनस बी माइनस के बाई 2a. आप देख सकते हो ऊपर क्या है रैशनल नंबर, नीचे क्या है रैशनल नंबर. रैशनल बाई रैशनल क्या होता है रैशनल. तो अल्फा क्या होगा रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं. उसी तरीके से देखिए माइनस बी माइनस के क्या है रैशनल नंबर, और 2a क्या है रैशनल नंबर. तो बीटा क्या होगा, बीटा विल ऑल्सो बी rational number. When this will happen, when a b c are rational number. तो अगर आपको दिया जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपको बताया जाता है a b c रैशनल नंबर है. ये ध्यान रखने की वाली बात है, a b c रैशनल नंबर है. रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए b अगर रूट 2 है तो फिर क्या होगा b, तो फिर तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ए बी सी तीनों रैशनल नंबर्स होने चाहिए. अगर ए बी सी तीनों रैशनल नंबर हैं और जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो आपका अल्फा और बीटा होगा वो भी क्या होगा रैशनल नंबर. आपको ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी.
कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कह सकते हो अल्फा और बीटा रैशनल नंबर होगा, प्रोवाइडेड ए बी सी भी रैशनल नंबर्स हैं। अगर ए बी सी रियल नंबर हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है आंसर, राइट। नेचर ऑफ रूट्स व्हेन वन रूट इज p प्लस रूट q, अगेन आपको ध्यान में रखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और abc रैशनल नंबर्स है। क्या है abc? रैशनल नंबर है। तो अगर अल्फा p प्लस रूट q आता है तो बीटा क्या होगा बताइए? p माइनस रूट q, उसका कॉन्जुगेट, क्योंकि आपको सम क्या चाहिए? माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट क्या चाहिए? c बाई ए। ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। अगर आपको सम और प्रोडक्ट दोनों रैशनल चाहिए और एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा? p माइनस रूट q। एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह, जैसे p प्लस आयोटा q है तो p माइनस आयोटा q। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? एबीसी शुड बी रैशनल नंबर, इस बात पे पूरा फोकस रखना होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर एबीसी रैशनल नंबर नहीं है तो आप ये आंसर नहीं दोगे। ये ट्रू तभी है जब ये इंप्लाई करता है एबीसी अगर रैशनल नंबर है तभी आपका, अगर अल्फा p प्लस रूट क्यू है तो बीटा p माइनस रूट क्यू होगा। सेम वे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में आपको जो प्री कंडीशन देखनी है वो ये कि a b c आपका रियल नंबर होना चाहिए। a b c अगर आपका रियल नंबर है तो एक रूट अगर p प्लस आयोटा q है तो दूसरा नंबर क्या होगा? p माइनस आयोटा q। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आई एम श्योर ये सब बड़े आराम से आप ध्यान में रख लोगे। आइए एक सवाल करते हैं। If the coefficient of the quadratic equation are rational and the coefficient of x square is 1, find the equation whose one root is tan pi by 8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स b मान लेते हैं और कोफिशिएंट और कांस्टेंट को c मान लेते हैं, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका इक्वेशन है जिसमें b और c क्या है? रैशनल नंबर। b और c क्या दे रखा है? रैशनल नंबर। तो मतलब फाइंड द इक्वेशन हुज वन रूट इज tan पाई बाई 8। अगर एक रूट tan पाई बाई 8 है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि tan पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होती है। जैसा कि आप जानते हो tan पाई बाई 8 इज नथिंग बट tan हाफ ऑफ पाई बाई 4, है कि नहीं? tan 22.5 डिग्री। अब tan पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप अगर को याद हो तो आपको पता है tan 2 थीटा is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, if you remember this, right? तो अगर मैं कहूं tan 2 into pi by 8 is equal to 2 into tan pi by 8 upon 1 minus tan square pi by 8, if you remember this can be handled this way. Now अब देखते हैं इस चीज को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ये आ गया। आपको पता है दिस इज गोइंग टू बी tan पाई बाई 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स से हमने tan पाई बाई 8 को y मान लिया। क्या मान लिया? y मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा? 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि पाई बाई 8 tan पाई बाई 8 को हमने y मान लिया, y की वैल्यू हमें चाहिए। और tan पाई बाई 4 आपको पता है 1 होता है, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो आप इसको रीअरेंज कैसे लिख सकते हो? y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स 0। y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac, दैट मेक्स इट 4 बाई 2। तो y की वैल्यू देखिए क्या आ रही है? एक वैल्यू आ रही है माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 बाई 2 और दूसरी आ रही है माइनस 2 रूट 2 बाई 2। ये देखिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रूट 2 माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा? माइनस 1 माइनस रूट 2। अब बताइए दोनों में से रूट कौन होगा? क्योंकि tan पाई बाई 8 क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव है तो इसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। क्या बचेगा? ये। सो tan 22.5 डिग्री, ये वैल्यू आप रट भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। tan पाई बाई 8 क्या होता है? रूट माइनस 1 प्लस रूट 2, है ना? आप रैशनल को पहले लिखते हैं, रैशनल को बाद में लिखते हैं।
तो आपने कहा tan पाई बाई 8 की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √2। तो अगर अल्फा है -1 प्लस √2 और अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b, विच इज अ रैशनल नंबर, b इज अ रैशनल नंबर, देन -b। एट द सेम टाइम अल्फा इंटू बीटा क्या है, c, अगेन विच इज अ रैशनल नंबर। तो अल्फा और बीटा क्या होने चाहिए, अगर अल्फा इरेशनल है तो बीटा क्या होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट। तो बीटा क्या हो जाएगा, -1 माइनस √2, -1 माइनस √2, वो जो दूसरी वैल्यू आई थी वो बीटा एक्चुअली में हो जाएगी, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो, राइट। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया है। तो एक्चुअली में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो यही होगा, y² + 2y - 1। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find all integral values of a for which the quadratic equation has integral roots। ठीक है, x - a into x - 10 plus 1 is equal to 0 has integral roots। अब आपको सिंपल सी बात समझनी होगी, इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या होता है। इंटीग्रल रूट्स का मतलब ये होता है कि भैया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा बनेगा दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए। अब देखिए क्या है, इसको पहले खोल देते हैं, x² माइनस a प्लस 10x प्लस 10a प्लस 1 इक्वल्स 0, राइट। अगर इसका अल्फा बीटा भी आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा जो भी आप लिखना चाहोगे उसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे a प्लस 10 प्लस माइनस a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10a प्लस 1 बाई 2। अब ये जो है ये इंटीग्रल कब होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आप ये इंटीग्रल की बात ही नहीं कर सकते हो। तो लेट से क्या हो रहा है, मैं डिस्क्रिमिनेंट देख लेता हूं। डिस्क्रिमिनेंट हो गया है a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10a प्लस 1, ठीक है। सिंस a ऑलरेडी इंटीजर है और यहां पे 2 है तो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग कि भैया सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए कि d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब d देखो क्या हो रहा है, a² प्लस 100 प्लस 20a माइनस 40a माइनस 4। गौर से देखिए क्या हो गया, ये बन गया a² माइनस 20a प्लस 100 माइनस 4। अब देखिए क्या हो गया, a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप गौर से देखेंगे तो बेसिकली है 4 इज इक्वल टू a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस d। आपको पता है कि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या है आपको पता, तभी रूट होगा। तो आपके पास ये आ गया है 4 इज इक्वल टू a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस d। अब दो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस 4 आ रहा है। कब ये ट्रू हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज में ये ट्रू हो सकता है, जब ये 2 हो जाए और ये 0 हो जाए। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जब दो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर रूट का, ये जैसे मान लीजिए d को आप परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हो तो d क्या हो गया k², लेट्स एज्यूम कर लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप देख रहे हो a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस k², जिसको आप देख सकते हो a माइनस 10 माइनस k इंटू a माइनस 10 प्लस k। आप देख सकते हो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू 2 दैट इज 4²। तो ये पॉसिबिलिटीज कब हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही केस में हो सकती है। कौन कौन से केस में हो सकती है, 2 इंटू 2 में हो सकती है, 4 इंटू 1 में हो सकती है, राइट। सिंस ये बड़ा है तो आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू 4 में हो सकती है ना। अगर आप दोनों केसेस में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ एक ही केस में ये ट्रू होगा जब k 0 हो जाए। क्या हो जाए, k 0 हो जाए। k जैसे 0 होगा आप कह सकते हो कि a माइनस 10 क्या हो गया, a माइनस 10 प्लस माइनस 2 हो गया। a माइनस 10 क्या हो गया, प्लस माइनस 2। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, एक हो सकती है 12 और दूसरी हो सकती है 8। एक हो सकती है 12 और दूसरी हो सकती है 8। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। a की वैल्यू पहले आप देख लो 12 मान के, तो x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121, क्या बन गया, x माइनस 11 का होल स्क्वायर, राइट। दूसरा देख लीजिए, x माइनस, दूसरा वैल्यू क्या है 8, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, क्या बन गया, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। सिर्फ इसी दो पॉसिबिलिटीज में क्या होगा कि ये इंटीग्रल वैल्यूज दे देगा, क्योंकि डिफरेंस आपने ये कहां पे पता किया, यहां से पता किया कि a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस डी। तो ये कहानी कब ट्रू हो सकती है, सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर के केस में हो सकती है, 2 और 0 के बिना दो और कोई ऐसा दो परफेक्ट स्क्वायर बताइए जिसका डिफरेंस 4 आता है, आपको पता है आप नहीं बता सकते हो, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटीज, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब आपको क्या बताना है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -2 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m, क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर -4, ये क्या बन गया 1 प्लस 8m प्लस m प्लस 8m स्क्वायर, राइट। क्या बन गया 4 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, ये क्या बन गया 4 8m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, राइट। अब तक सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 कॉमन ले लो, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 1। अब देखिए क्या हुआ, 1 से -1 कट गया, अब देखिए बचा क्या, 9m स्क्वायर माइनस ये हो गया 8 और ये हो गया 3m, राइट, विच मीन्स दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मतलब 4 इंटू m स्क्वायर माइनस 3m शुड बी इक्वल टू 0। सो आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो आप कह सकते हो m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0, विच मीन्स m इंटू m माइनस 3 0, एक रूट हो गया आपका 0, दूसरा रूट हो गया 3। सो दिस इज लाइक अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। 11th, if the roots of the equation x minus a into x minus b minus k is bc minus d, prove that the root of equation x minus c into x minus d plus k is equal to 0 are a and b। ये सवाल देखने में अगर आप कैलकुलेशन में घुस जाएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से बस फैक्टर थ्योरम को यूज करेंगे, किसको, फैक्टर थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है, आपको पता है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है और इसका रूट अगर अल्फा बीटा है, तो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आई एम श्योर आपको पता है। अब देखिए पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, पहला इक्वेशन दे रखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू 0। इसमें आपको बता रखा है कि रूट्स हैं आपके c और d। तो मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0। मैं ये लिख सकता हूं फैक्टर थ्योरम से, आई एम श्योर आप जानते हो, राइट। देखिए अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको दूसरा इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के, राइट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन पे ध्यान दो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख दिया। तो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के को आपने क्या लिख दिया, इसको आपने लिख दिया, इसको आपने क्या लिख दिया, इसको आपने लिख दिया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रूट्स a एंड b हो गए। सो इट्स लाइक अ सिंपल क्वेश्चन जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको मजा आया होगा देख के। Show that the expression x square plus twice of a plus b plus c into x plus thrice of ab plus bc plus ca will be a perfect square if a equals b equals c। Now कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जैसे अगर आप कहो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप परफेक्ट स्क्वायर कब लिख सकते हो, जब px प्लस q का होल स्क्वायर लिख दो,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या होता है? टू इक्वल रूट्स। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे हो, उसका मतलब होता है टू इक्वल रूट्स। और टू इक्वल रूट्स, अगर किसी भी एक्सप्रेशन को आप परफेक्टली लिख पाए हो परफेक्ट स्क्वायर की तरह, उसके अलावा कुछ आसपास नहीं हुआ, कोई एक्सप्रेशन आराम से परफेक्ट स्क्वायर लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है उसके रूट्स होंगे टू इक्वल रूट्स। और टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये ज्ञान आपको होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोई बोलता है कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है रूट्स आर इक्वल। और रूट्स आर इक्वल का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स जीरो। तो अब आपके लिए एक मैकेनिकल सवाल बन चुका है। सो टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, माइनस फोर इंटू थ्री इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए शुड बी इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा फोर, ये बन जाएगा। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बाद में हम देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं, है ना? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए माइनस फोर इंटू थ्री ए बी प्लस थ्री बी सी प्लस थ्री सी ए। आप इसको ले जाओ, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर कॉमन ले लो, आपके पास पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी है प्लस टू बी सी है प्लस टू सी ए है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? माइनस फोर इंटू दिस है, तो आप फोर कॉमन ले चुके हो, तो आप ले सकते हो माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री सी ए। आपको पता है हम क्या आ गए हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपने ये एक्सप्रेशन याद है क्लास 9th में सबसे पहली बार देखा था, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी को फैक्टराइज किया था। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। जल्दी से मैं इसको दिखा देता हूं, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको एक बार दिखा दूं ताकि आसानी लगे आपको। इसको मैंने टू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। इससे क्या हुआ? इससे देखिए क्या हो गया? टू बाहर रह गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एक साथ, फिर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी एक साथ, फिर हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी एक साथ। तो आप इसको सीधे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट। नाउ दिस इज द चैलेंजिंग पार्ट। ठीक है, कि अब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? लेट मी टेक द देखिए क्या हुआ है? आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया है ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ यू वांट दिस एक्सप्रेशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है यू वांट योर डिस्क्रिमिनेंट टू बी जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये टर्म है पॉजिटिव, ये टर्म है पॉजिटिव, ये टर्म है पॉजिटिव। परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तीन पॉजिटिव नंबर्स ऐड होके जीरो कभी नहीं बनते हैं, आपको भी पता है। लेकिन तीन पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर ऐड होके जीरो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ए माइनस बी जीरो है, बी माइनस सी भी जीरो है, तीनों को एक साथ जीरो होना होगा, सी माइनस ए भी जीरो है। इसका मतलब है ए इक्वल्स बी, इसका मतलब है बी इक्वल सी, इसका मतलब है सी इक्वल्स ए, जिसका मतलब है ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी। आई एम श्योर आपको ये चीज समझ में आ गया है। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको कभी नहीं भूलना है। राइट, जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो आपको एबीसीडी की तरह रटे होने चाहिए। आइए नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। जैसा कि आप ऑलरेडी बेसिक मैथ से पढ़ चुके हैं, अगर मैं ए और बी में मान लो ए इज ग्रेटर देन बी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? ए इज ग्रेटर देन बी। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, आप ऐसे ड्रॉ कर लो। वेवी का आपने पढ़ा है, जीरो कहां पे होगा? ए पे होगा, और जीरो कहां पे होगा? बी पे होगा। आप देख सकते हो
मैं पहले ए के लिए बना देता हूं, ये यहाँ पे x माइनस ए 0 होगा, राइट। इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव कहां मिलेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव। आप देख सकते हैं, दूसरा कलर लेता हूं ग्रीन। आपको पता है x माइनस बी, ये 0 कहां पे होगा, ये 0 होगा x माइनस बी इक्वल्स 0 पे। यहां पे इसके राइट क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि आपका जो रियल नंबर पे 3 रीजन बन गया है। कौन से रीजन बन गए, 3 रीजन। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। यहां पे देख रहे हो दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। क्या हो रहा है, दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। आपको पता है यहां पे 0 हो गई है कहानी, क्योंकि एक एक्सप्रेशन 0 हो गया है। यहां पे देखिए क्या है, x माइनस ए नेगेटिव है, लेकिन x माइनस भी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। रीजन 2 में आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपको पता है कहानी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x माइनस बी यहां पे 0 हो गया है। एक भी एक्सप्रेशन अगर किसी प्रोडक्ट में 0 हो जाता है तो पूरी कहानी 0 हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड थर्ड रीजन में आ जाइए तो क्या होगा, नेगेटिव, x माइनस ए नेगेटिव है और x माइनस बी भी नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो ये एक्सप्रेशन की आंसर रीजन 3 और रीजन 1 होगा, रीजन 3 एंड रीजन 1। मतलब आप कह सकते हो एनी ऑफ द रीजन 3 और रीजन 1 विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब रीजन 3 को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप जानते हो इधर माइनस इंफिनिटी होता है और ये पॉइंट क्या है, बी। सिंस यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो आप बी को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी से माइनस बी, ओपन ब्रैकेट। आई एम श्योर आपको इन सब का मतलब पता है, आई एम श्योर आपको इसका भी मतलब पता है, आई एम श्योर आपको इसका भी मतलब पता है, आई एम श्योर आपको इसका भी मतलब पता है, आई एम श्योर आपको इसका भी मतलब पता है। नहीं पता है तो जल्दी से झट झट बता देता हूं। इसका मतलब है ए और बी के बीच में जितने भी यहां, सॉरी यहां इसके लिए आप इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे, ठीक है। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए जो मैंने यहां पे भी लिखा है, ये इसके लिए सिर्फ ये अलग से इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस, ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। तो यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पे है मैंने लिखा है कि ए और बी के बीच में, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट ए बी, मतलब होता है इसे हम क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी। इसका मतलब होता है ए पे स्क्वायर है और बी पे राउंड है, मतलब ए क्लोज है और बी ओपन है, मतलब ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए नॉट इंक्लूडिंग बी। इसका मतलब है ओपन एट ए क्लोज एट बी, मतलब all real numbers between a and b including b excluding a not including a। दोनों पे राउंड हो गया है, मतलब a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो इंक्लूड करेंगे, बट a और b बाउंड्री को नहीं इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब है ओनली a एंड ओनली b, बीच में कोई भी नंबर नहीं अगर कर्ली ब्रैकेट है। तो आप जानते हो रीजन 3 को मैं लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी से b। मैंने राउंड ब्रैकेट इसलिए रखा है b पे क्योंकि b को आप 0, एक्सप्रेशन यहां पे क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। एट द सेम टाइम इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नंबर नहीं होते हैं, इसलिए उसको आप हमेशा ओपन रखते हैं। और है मतलब कोई भी एक आदमी इसको सही कर देगा, मतलब अगर आप रीजन 3 में भी हैं तो ट्रू है, अगर आप रीजन 1 में भी हैं तो ट्रू है। तो आप इसको यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद रीजन 1 कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और आगे जा रहा है, लेकिन ए को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ए पे कहानी 0 है और आप देख रहे हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए से इंफिनिटी दोनों ओपन, राइट। यहां पे आ गया है सेम कहानी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आपको याद हो कि अभी हमने किया था, अभी हमारे आंसर्स क्या आए थे आपको पता है, ये हमने a माना था, ये हमने b माना था, ये मेरा रीजन 1 था, ये मेरा रीजन 2 था, ये मेरा रीजन 3 था, ये 0 का रीजन था और ये भी 0 का रीजन था। ये पॉजिटिव रीजन था, ये नेगेटिव रीजन था और ये पॉजिटिव रीजन था। आपको इस बार चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप ये रीजन इंक्लूडिंग बी, इसको भी इंक्लूड करोगे क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया है और ए भी इंक्लूड होगा। तो अब आप इसको लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से बी वुड बी क्लोज यूनियन ए वुड बी क्लोज टू इंफिनिटी। तो पिछले और इसमें आंसर में बस इतना फर्क होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो, आपको पता है रीजन 2 इज द आंसर, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है ना। फिर से आप देख सकते हो, अगर आप इसको, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3, दिस इज नेगेटिव रीजन, दिस इज पॉजिटिव रीजन, दिस इज पॉजिटिव रीजन। आपको क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली नेगेटिव रीजन चाहिए, तो बी विल नॉट बी इंक्लूडेड, ए विल नॉट बी इंक्लूडेड, सो ओनली आंसर वुड बी बी से ए, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। एंड सेम वे लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आप इस बार आपका क्या हो जाएगा, आपका ये इंक्लूड हो जाएगा और ये इंक्लूड हो जाएगा, तो आप आंसर क्या लिखोगे, आप लिखोगे x बिलोंग्स टू b से a। ये हमने बेसिक मैथ्स में इससे भी डिटेल में वेवी कर्व तक सीख लिया, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा, राइट। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कह रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट, मतलब ये ऑलरेडी बता रहा है कि इट हैज रियल रूट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका बता रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। क्या बता रहा है कि इफ b इज इक्वल टू जीरो, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, जिसमें b जीरो हो गया है, तो मतलब ये इक्वेशन क्या बन गया है, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया है, जीरो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया है, जीरो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, क्या हो गया इसका मतलब, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। इसका मतलब है अल्फा एंड बीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन। आप कह सकते हो अल्फा और बीटा एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, दैट इज व्हाई अल्फा प्लस बीटा बिकम्स जीरो। तो अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b जीरो दिखे, तो इसका मतलब है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है, तो ये सबसे पहला कंडीशन है कि रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, रियल रूट है, तो b अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि दोनों एडिटिव इनवर्स है। दूसरी कहानी देखिए कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स एंड c इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो अब अल्फा बीटा रियल रूट्स हैं, अल्फा इंटू बीटा इज जीरो हो गया है, c जीरो होते ही क्या हो गया, अल्फा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज c बाई a विच हैज टर्न आउट टू बी जीरो, c जीरो है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज जीरो, विच मींस at least one root has to be, बताइए क्या होगा, जीरो। अल्फा या बीटा में कोई एक बंदे को जीरो होना पड़ेगा। अगर अल्फा और बीटा अगर नॉन जीरो है, तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा अगर जीरो है, तो इसका मतलब वन ऑफ अल्फा एंड बीटा, one of alpha and beta would be equal to minus b by a and other would be equal to zero। सिंपल सी कहानी है, एक रूट माइनस बी बाई ए हो जाएगी, दूसरी रूट जीरो होगी। अगर बीटा बी भी जीरो हो गया है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया, जिसका मतलब दोनों रूट जीरो हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स इफ ए इक्वल सी, अगर ए और सी इक्वल हो गया तो क्या होगा, तो आप सिंपल सी बात है, अल्फा इंटू बीटा हो गया है c बाई ए विच इज इक्वल टू वन, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया है, वन। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स वन हो गया है, मतलब अल्फा एंड बीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, दोनों रेसिप्रोकल होंगे। एट द सेम टाइम यू कैन से अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, आप इसको देख सकते हो, एक अल्फा होगा तो दूसरा वन बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो यहां से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो बस इतना पता चल जाता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट सेम है विद द सेम साइन, साइन भी सेम है, इफ ए इक्वल सी, तो दे आर रेसिप्रोकल। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स, बार बार देखिएगा ब्लू लाइन में हमेशा रियल रूट्स लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही आप बात करना शुरू कर सकते हैं। इफ a एंड c आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज c बाई ए, आपको पता है, एंड अल्फा c एंड a आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, a इंटू c हैज टू बी लेस देन जीरो, इसका मतलब c बाई ए भी लेस देन जीरो होगा। तो आप कह रहे हो अल्फा इंटू बीटा बेसिकली नेगेटिव होगा। क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव हो रहा है, मतलब अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन।
अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन। तो अगर ए और सी अपोजिट साइन के हैं तो अल्फा और बीटा भी अपोजिट साइन के होंगे। इफ ए बी एंड सी आर ऑफ सेम साइन, इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, तो मतलब अगर यहां पे अपोजिट साइन था तो आप कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए विच इज पॉजिटिव। सेम साइन का मतलब क्या होता है, सी ए बाई सी वुड बी पॉजिटिव या पॉजिटिव, या सी बाई ए वुड बी पॉजिटिव। सेम साइन का मतलब ये होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और बी और ए सेम साइन के हैं तो मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन आगे लग गया है माइनस ऑफ पॉजिटिव विच मींस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मतलब अल्फा और बीटा सेम साइन के होने चाहिए, यहां से ये पता चलता है। लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब अल्फा भी नेगेटिव होगा और बीटा भी नेगेटिव होगा, दोनों हैज टू बी नेगेटिव, तभी ये ट्रू होगा। इफ ए बी सी आर ऑफ सेम साइन then alpha and beta both have to be negative, that is the final answer। सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देते तो आप कहते हैं सेम साइन, लेकिन आप देख रहे हो सम क्या हो गया है, सम नेगेटिव हो गया है। ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots and if a and c are positive and b is negative। पहला केस देख लेते हैं। if a and c are positive, alpha into beta is positive। पहले केस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा इज पॉजिटिव क्योंकि ए एंड सी आर पॉजिटिव, एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, बी इज नेगेटिव, ए इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो फाइनली इट वुड बी पॉजिटिव। तो आपको पता चल चुका है कि अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव है और अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव, राइट। आइए दूसरे इसमें देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखिए ए एंड सी आर नेगेटिव, तो अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप अब कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा अभी भी पॉजिटिव है। उसके बाद क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या कह रहा है, बीटा बी इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव, सो माइनस पॉजिटिव माइनस क्या हो गया, बेसिकली पॉजिटिव हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा अभी भी पॉजिटिव है। यहां से पता चलता है अल्फा बीटा सेम साइन का है, यहां से पता चलता है अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब यही हुआ कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में आप ये सारी चीजें आप रट नहीं सकते हो, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द सेंस वी आर डूइंग इट, लाइक दीज आर वेरी इजी टू डिड्यूस। If ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots and if a and b are of same sign and c is of opposite sign, ये और ये सेम साइन का है और c अपोजिट साइन का है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं अल्फा इंटू बीटा कहूं तो c बाई ए होता है और c और a अपोजिट साइन का है मतलब नेगेटिव, तो अल्फा इंटू बीटा इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है अल्फा एंड बीटा आर अपोजिट और ऑफ अपोजिट साइन। लेकिन ये अभी पूरा कंडीशन नहीं है, यहां से बस हमें ये पता चला है कि अल्फा एंड बीटा आर ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ अपोजिट साइन। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए। ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन मतलब माइनस अपॉन बी बाई ए क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया है फाइनली नेगेटिव। अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन एंड सम इज नेगेटिव, मतलब negative roots magnitude is bigger than positive roots magnitude। आपको मतलब समझ में आ रहा है, आपके पास एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है और दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब जो आपका मैग्नीट्यूड है नेगेटिव रूट का वो ज्यादा है, दैट इज वाई द सम इज टर्निंग। मान लीजिए अगर एक रूट 5 है और दूसरा रूट -3 है तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो +2 आएगा, तो ये केस नहीं होगा। लेकिन एक रूट 5 है और दूसरा रूट -9 है तो ये केस हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड कीजिएगा तो फाइनली सम नेगेटिव होगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव रूट इज बिगर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव रूट। Roots under let ax square plus bx plus c equals 0 has real roots if b and c are of same sign and a is of opposite sign। So let's say alpha plus beta क्या होगा,
माइनस बी बाई ए और बी अपोजिट साइन का है तो दैट वुड बी नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज बेसिकली पॉजिटिव। उसके बाद आप क्या कह सकते हो, अल्फा इंटू बीटा दैट इज गोइंग टू बी सी बाई ए, सी आर ऑफ सेम साइन एंड ए इज ऑफ अपोजिट साइन, मतलब दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, नेगेटिव। यहां से पता चलता है कि अल्फा एंड बीटा अपोजिट साइन के हैं, और यहां से पता चलता है कि सम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रूट, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रूट is bigger than magnitude of negative root। कौन सा ज्यादा आ गया, अगर मान लीजिए एक रूट 7 है और दूसरा -9 है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो सम नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द केस। बट एक रूट 7 है और दूसरा रूट -3, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो सम पॉजिटिव होगा, तो दैट इज द केस, राइट। If ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots and if a plus b plus c is equal to 0, अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और सिंपल सी बात है बाई सिमेट्री आप कह सकते हो a1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हो अल्फा या बीटा में कोई एक बंदा 1 है, दूसरा बंदा क्या होगा, अदर रूट वुड बी, आपको पता है c बाई ए। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट बीटा है, 1 इंटू बीटा इज c बाई ए, तो बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए। आप कह सकते हो बीटा c बाई ए है, या आप ये भी कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अगर 1 है तो बीटा भी 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस 1। ये दोनों सही है, मतलब इस केस में c बाई ए और माइनस बी बाई ए माइनस 1, ये कहानी ट्रू हो जाएगी अगर दिस इज ट्रू। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट। आइए झटपट सवाल करते हैं। इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx अपॉन ax माइनस c इक्वल्स k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 हैज रूट्स इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए क्या होगा, k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू के माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी, राइट। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं के माइनस 1 इंटू ए इंटू एक्स माइनस सी इंटू के माइनस 1। इसको क्या लिख सकता हूं, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी इंटू के माइनस 1 इक्वल 0, राइट। जिसमें आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू के प्लस 1 प्लस ए इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी इंटू के माइनस 1 इक्वल 0। अब क्या कह रहा है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ रूट्स 0 होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस बी बाई ए, मतलब प्लस बी इंटू के प्लस 1 प्लस ए इंटू के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें हमारे आंसर तक पहुंचाएगा। तो मैं लिख सकता हूं b इंटू के प्लस 1 प्लस ए इंटू के माइनस 1, डेनोमिनेटर गैप हो जाएगा क्योंकि 0 है तो क्रॉस कर दोगे आप, इज इक्वल टू 0। सो व्हाट यू कैन डू इज a प्लस बी इंटू के प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। सो k वुड बी इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस b। This is going to be your answer. So it's an easy problem, right? If roots of the equation a minus bx square plus c minus a into x plus b minus c is equal to 0 are equal, then show that abc are in ap. Since आपने ap अभी 11th में नहीं पढ़ा है,
लेकिन 10th में एपी आपने पढ़ा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इस एपी कहां से आ गया है। आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रहा है रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल सुनते ही आपको पता चल चुका होगा डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको स्क्वायर अप कर दो तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये क्या हो गया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये ऐसे लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4ac इधर देखिए क्या हो रहा है माइनस 4ab यहां पे लिखाएगा माइनस 4ab, फिर क्या होगा माइनस 4bc लिखाएगा माइनस 4bc, और प्लस 4ac माइनस 2ac क्या बन जाएगा 2 प्लस 2ac। अब देखो इसको बड़े आराम से आप फैक्टराइज कर सकते हो, देखो कैसे, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया 2b का स्क्वायर, और रादर यू विल से माइनस 2b का स्क्वायर। क्यों बताइए, क्योंकि यहां पे b है यहां पे b है एंड यू सी माइनस है, सो आप यहां पे थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं, ये सी स्क्वायर हो गया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b, आप उसको लिख सकते हो प्लस 2 इंटू बी इंटू माइनस 2b, सॉरी 2 इंटू सी इंटू माइनस 2b, और इसको आप लिख सकते हो प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। आई एम श्योर आपको पता होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो ए माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आया a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। नाउ यू वांट रूट्स टू बी इक्वल विच मींस यू वांट d टू बी इक्वल, सो a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स मींस a माइनस 2b प्लस सी इक्वल 0 विच मींस 2b इक्वल्स a प्लस c विच मींस a b and c are in AP। याद करो पहला रूट, अगर पहला नंबर ए होता है तो दूसरा नंबर ए प्लस डी होता है और दूसरा नंबर ए प्लस डी होता है, इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है, इसका डबल हो जाता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ एपी। ऐसे भी आप देख सकते हो ए माइनस डी ए प्लस डी, ये क्या होते हैं, ये एपी होते हैं, इन दोनों को ऐड करो तो ये इसका डबल आएगा, राइट। So you can say A, B and same problem if P and Q are the roots of equation ax square plus bx plus c equals 0, find the value of the expression pq plus q। तो ये सब चीजें आपको आता है, कैसे करोगे, सबसे पहले देख लो p प्लस क्यू क्या है माइनस बी बाई ए, और p इंटू क्यू क्या है c बाई ए। आपको क्या निकालना है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा, आप इसको कर लेना। इसको आप फैक्टराइज कैसे कर सकते हो, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये तो आपका हो गया माइनस बी बाई ए, इसको आप एज इट इज छोड़ दोगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3p क्यू, फिर क्या हो गया माइनस बी बाई ए प्लस माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू सी बाई ए। आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। सेम वे p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। अब क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप प्लग करो, यहाँ पे आप प्लग करो, यहाँ पे आप प्लग करो, यहाँ पे क्या प्लग करोगे माइनस बी बाई ए, यहाँ पे क्या प्लग करोगे सी बाई ए, यहाँ पे क्या प्लग करोगे सी बाई ए, यू विल गेट योर आंसर। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आप इसको बड़े आराम से हैंडल करना जानते हो, दैट इज गोइंग टू बी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq, ये क्या हो गया माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। द फोर्थ पार्ट p टू द पावर 4 माइनस q टू द पावर 4, इसको आप कैसे हैंडल करोगे, इसको आप लिखोगे p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर, क्या बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर into p square minus q square which makes it p
स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब क्या करोगे, इसको आप लिखोगे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, इसको एज इट इज छोड़ दोगे, यहाँ पे माइनस बी बाई ए ले आओगे और इसको लिखोगे अंडर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू, और इसको आप एज इट इज छोड़ दोगे, राइट। यहाँ पे आप ये कंडीशन ले सकते हो कि P इज ग्रेटर देन Q का कंडीशन आप ले सकते हो। तो फिर क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सी बाई ए, इसको एज इट इज, ये हो गया माइनस बी बाई ए और ये हो गया अंडर रूट माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस फोर सी बाई ए। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। Let's go to the 17th problem. If P and Q are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, form an equation whose roots are P plus 1 by Q and Q plus 1 by P. तो ये आपका एक रूट है, ये आपका एक रूट है, ये अल्फा मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखिए P प्लस Q प्लस 1 by P प्लस 1 by Q। बेसिकली क्या बन गया, P प्लस Q प्लस P प्लस Q अपॉन पी क्यू। दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा, which is your S, sum of roots। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा, क्या बन गया P प्लस वन बाई क्यू इंटू क्यू प्लस वन बाई पी। मल्टीप्लाई कीजिए P इंटू क्यू प्लस वन प्लस क्यू बाई पी। सॉरी, P इंटू क्यू प्लस वन अपॉन पी क्यू, वन अपॉन पी क्यू। अब आप यहां पे डाल सकते हो, देखो क्या है, P एंड Q आर रूट्स ऑफ दिस, तो आप P प्लस Q आप डाल सकते हो माइनस बी बाई ए और प्लस माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए। सो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई सी, राइट। और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए प्लस टू प्लस ए बाई सी। तो ये आपका हो गया P, ये हो गया S, आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स जीरो। आपको ये आई एम श्योर आता है। सेकेंड प्रॉब्लम फिर से वैसे ही है, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वन अपॉन पी प्लस क्यू प्लस वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। दोनों को देखिए क्या होगा, वन अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। आई एम श्योर इसको लिख दीजिएगा आप माइनस ए बाई बी, क्योंकि पी प्लस क्यू इज माइनस बी बाई ए, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस ए बाई बी। ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए और ये हो जाएगा सी बाई ए। फाइनली यू विल गेट माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई सी एज योर सम। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा वन अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, राइट, क्योंकि वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू वही हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन पी क्यू विच इज ए बाई सी। तो आप कह सकते हो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। आई एम श्योर ये आपको आता है। कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये आपका असाइनमेंट है, देखिए कैसे करेंगे, मैं बस बता देता हूं। आपको सबका डिस्क्रिमिनेंट पे काम करना है। ये 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के डिस्क्रिमिनेंट्स पे काम करके बताइए। एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए इसका सी जो इसका कांस्टेंट है वो नेगेटिव है। आपको अगर मैं कोई ऐसा इक्वेशन देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई माइनस 78945 टू द पावर 2734 इज इक्वल टू 0 और ये x है, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसका रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे आई एम श्योर, लेकिन आप बोलेंगे इसका रूट एग्जिस्ट करेगा। बताइए क्यों करेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर a और c अपोजिट साइन का है, a और c अपोजिट साइन का है, a1 है और यहाँ पे नेगेटिव है, a और c अपोजिट साइन का है, तो a इंटू सी क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया पॉजिटिव टर्म, ये हो गया पॉजिटिव टर्म, दो पॉजिटिव टर्म का सम क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो इस लॉजिक से। तो ये 5 सवाल हैं, आप जरूर इस पे करिएगा।
लेट्स सी 19th प्रॉब्लम क्या है. Find a quadratic equation whose roots are squares of the sum and difference of the roots. Okay, एक find a quadratic equation whose roots are squares of the sum and the difference of the roots. तो एक रूट है इसका अल्फा, अल्फा इज मान लीजिए इसका रूट्स लेट से p और q है, तो अल्फा इज p प्लस q का स्क्वायर एंड बीटा इज p माइनस q का स्क्वायर. आपका जो फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इज p प्लस q का होल स्क्वायर. अब देखिए p प्लस q क्या है, यहां से देखिए तो आप कह सकते हो अल्फा इज m प्लस n का होल स्क्वायर. और बीटा क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, सम डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट इज p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4pq विच यू कैन से व्हाट इज p प्लस q. अभी हमने देखा है p प्लस q इज m प्लस n का होल स्क्वायर एंड व्हाट इज p इंटू q दैट इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 2. तो आप देख सकते हो ये हो गया m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. तो आप देख सकते हो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2mn. तो अगर मैं माइनस निकाल दूं तो ये हो गया माइनस ऑफ m माइनस n का होल स्क्वायर. सो अल्फा ये है, बीटा ये है, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m माइनस n का होल स्क्वायर. और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर इनटू माइनस m माइनस n का होल स्क्वायर. तो आई एम श्योर आप ये दोनों बड़े आराम से लिख के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे. लेट्स गो टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे. The condition such that this equation has real roots that are equal in magnitude but opposite in sign. आपको कंडीशन बताना है. ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है जो x पे दे रखा है, राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है जो कांस्टेंट्स में दे रखा है. 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस b इक्वल्स 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m प्लस b हैज रियल रूट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो अगर मैं देखूं सिमेट्री से आप देख सकते हो यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया है m और यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया है m, तो एक रूट तो डेफिनेटली m हो गया है, एक रूट डेफिनेटली m हो गया है. दूसरा रूट क्या होगा, बहुत इजी है गेस करना, क्या होगा माइनस m. क्यों कहा आपने माइनस m, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो मैं कह सकता हूं इसको बीटा इसको माइनस m सेटिस्फाई करेगा. तो मैं कह सकता हूं 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस b इक्वल्स 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m प्लस b. राइट, अब ये कहानी आपको आ गई. अब मैं क्या कर सकता हूं, इधर दोनों को ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस 2 बाई एम, और ये उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन बी प्लस एम माइनस 1 अपॉन बी माइनस एम. अब देखिए ये माइनस 2 बाई एम एज इट इज छोड़ दिया, यहाँ पे क्या बना, नीचे आ गया बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये बन गया बी माइनस एम, ये बन गया माइनस बी प्लस एम. देखिए क्या हुआ, ये बी से बी कैंसिल. सो यू गॉट, इसको ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. So what you got? You got something like minus 2 by m minus 2m upon b square minus m square. So minus and minus cancel, 2 से 2 cancel. So you can say b square minus m square equals m square, which means b square equals 2m square. So this is the condition. I hope you know how to handle them. So let's call it a day. So we have finished lecture number 2. हमने क्या क्या कवर किया जल्दी से देख लेते हैं, एक रिकैप. तो हमने अब तक सेक्शन ए में ये सारी चीजें ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर ली थी. आज हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, और ये चीजें हमने कर ली. Now this is what we will begin from the next class. We'll be talking about quadratic identity, and then we'll be doing problem solving to enhance that. Then we'll be talking about common root, and then so these two are the new topics. Let me just give you again the review. अगर आप भूल गए हो तो सेक्शन सी में हम क्या करने वाले हैं, हम ग्राफ करने वाले हैं, रेंज निकालने वाले हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. सेम वे बेबी कर्व फिर से करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन ऑफ रूट, जो सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी लेगा.
उसके बाद जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हमने ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में कर लिया था, तो इसमें आपको आसानी से समझ में आएगा और ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल केस नहीं होगा। सेक्शन ई में हम लोग पूरा एक डिटेल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, जिसमें और हम एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। एट द सेम टाइम एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट आने वाली है, इनफैक्ट तैयार है, जस्ट बिकॉज आपकी एग्जाम थी जो संडे को आपका टेस्ट है, इसकी वजह से मैंने अभी नहीं डाला आपका क्लास, लेकिन वो क्लास आपकी जल्दी रिकॉर्ड, मतलब क्लासेस रेडी हैं, बस हमने अभी आपको पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आप अभी अपने टेस्ट पे भी ध्यान दें, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लर्निंग टेस्ट से होती है। और किसी भी तरीके से अगर आपको दिक्कत आ रही है, प्लीज आप मुझे फोन कीजिए, कैसे भी, अगर आपको डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं पढ़ाई, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत मुझे कॉल कीजिए, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।